is a product of primes, means if n is composite and it can be written as a product of primes, then Dn with respect to the relation divides is a Boolean algebra. If n is a positive integer and p square divides n, where p is a prime, then Dn is not a Boolean algebra. Okay, so I will explain all with the help of an example. Here we have example. You have to check whether these are Boolean algebra or not. Suppose D30 under divisibility. Okay, this vertical line means what? Divisibility. So here n is 30. How can you write 30 as a product of prime? First of all, 30 can be written as 10 into 3, and further I can split 10 as 5 into 2. So 30 can be written as 5 into 2 into 3. Correct? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is a product of primes. Correct? Now these primes are distinct. Is any prime repeating? कोई prime number repeat हो रहा है क्या? 5 to 3? No, ma'am. It means it is a product of distinct primes. Correct? And therefore I can say that D30 is a Boolean algebra. Understood? Okay. Yes, Now ma'am. next you have D18. Now 18 can be written as 9 into 2, which is equal 3 into 3 into 2. Correct? Yes, ma'am. Now is this product of distinct primes? No, 3 is getting repeated. 3 repeat हो रहा है ना? Repetition नहीं चाहिए. अब यहाँ पे 3 repeat हो रहा है. So it is not a product of distinct primes or which is a product of non-distinct primes. कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है. तो उसके बाद क्या करना है तुमको? यहाँ पे P1, P2, P3 लेना है. P1 तुमने 3 लिए, P2 को भी 3 लिए और P3 को 2 लिए. यानी कि 3 प्राइम नंबर्स को P1, P2, P3 नाम दिए. 4 होते तो P4 भी आ जाता. ठीक है. Now calculate from here P1 square. P1 square कितना हो गया तुम्हारा? 9. 9 हो गया. 9 हो गया तो 9 18 को डिवाइड करता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Since 9 divides 18, so D18 is not a Boolean algebra. ठीक है. कोई भी एक प्राइम नंबर है जो जिसका स्क्वायर अगर तुम्हारे n को डिवाइड करता है, then it is not a Boolean algebra. Understood? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे D16 भी रहता तो 16 के लिए तुम्हारे पास क्या आता? 2 into 2 into 2 into 2 है ना? 4 बार 2 आता. करेक्ट? तो उसमें से 2 का स्क्वायर क्या हो जाता? 4. 4 16 को डिवाइड करता है ना? So p square divides n. So D16 is not a Boolean algebra. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Now next you have atom of a Boolean algebra. Let B be a Boolean algebra. A non-zero element. Very important. Please pay attention to this word. A non-zero element. Element should be what? It should be non-zero. A non-zero element A belongs to B is called an atom. If for every element X belongs to A, X meet A equals to A or 0, which is the minimal element. Boolean algebra कब बोलेंगे? Boolean algebra है. Boolean algebra में एटम है. एटम कब बोलेंगे? एलिमेंट ए है, उसको एटम कब बोलेंगे? जब x मीट a. तुम्हारा वो a खुद रहना चाहिए या तो मिनिमल एलिमेंट आना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? तुमको मीट टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है. मीट टेबल बनाना पड़ेगा और मीट टेबल से तुमको देखना पड़ेगा नॉन जीरो एलिमेंट. नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो एलिमेंट को छोड़कर. ठीक है. जीरो एलिमेंट मतलब सबसे छोटा वाला एलिमेंट. जीरो एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम पढ़ चुके. जीरो एलिमेंट एंड वन एलिमेंट. वन एलिमेंट मतलब मैक्सिमल एलिमेंट, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, और जीरो एलिमेंट मतलब सबसे छोटा वाला एलिमेंट या तो मिनिमल एलिमेंट. करेक्ट? Yes, ma'am. तो जो मिनिमल एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स के तुम मीट के रो में चेक करोगे. अगर वो मीट के रो में तुमको वो एलिमेंट खुद आता है या तो सबसे छोटा वाला मिनिमल एलिमेंट आता है, तो वो एटम बन गया. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है B इक्वल्स टू 0 0 0 1 1 0 1 1. इसमें से एटम्स फाइंड करने हैं, तो इसका हेसे डायग्राम बनाना है तुमको और इसका मीट टेबल बनाना है. सिर्फ जॉइंट टेबल की जरूरत नहीं है तुमको. तो यहाँ पे तुम्हारा मीट टेबल है. ठीक है. अब यहाँ पे मिनिमल एलिमेंट क्या है बोलो मुझे? 0 0. 0 0. छोटा वाला 0 0 मिनिमल एलिमेंट है. ठीक है. तो अब 0 0 को छोड़ दो. वो मिनिमल एलिमेंट है, उसको छोड़कर बाकी के 3 एलिमेंट्स जो बचे
0 1 1 0 एंड 1 1, उसको हम चेक करेंगे कि वो एटम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 0 क्या हो गया तुम्हारा, मिनिमल एलिमेंट हो गया, यानी कि जीरो एलिमेंट हो गया वो। और एटम क्या रहता है, नॉन जीरो एलिमेंट। तो बाकी के बचे हुए 3 एलिमेंट्स को देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, 0 1 जो है, 0 1 मीट के टेबल में 0 1 के रो में कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुमको 0 1 के रो में? 0 0 0 1 0 0 0 1. यानी कि वो एलिमेंट खुद आ रहा है 0 1, या तो मिनिमल एलिमेंट मिल रहा है ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब 0 1 क्या हो गया, एटम हो गया तुम्हारा। समझ में आ गया? ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? मैम रिपीट वंस। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 1 0 को देखो। 1 0 के रो में मुझे बोलो कि कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 0 के रो में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 0 0 0 0 1 0 1 0. 0 0 0 0 1 0 1 0. It means what? Zero element or the element itself, correct? 0 0 Yes, क्या है, ma'am. मिनिमल Yes, ma'am. एलिमेंट है, यानी कि जीरो एलिमेंट है। उसके बाद क्या आ रहा है, 0 0, वो भी जीरो एलिमेंट है या तो मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद 1 0 आ रहा है, 1 0 मतलब वो खुद आ रहा है। फिर उसके बाद 1 0 आ रहा है, मतलब वो खुद एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मीट, कोई भी एलिमेंट के साथ अगर तुम मीट लेते हो 1 0 का, तो तुमको वो एलिमेंट खुद मिल रहा है या तो मिनिमल एलिमेंट मिल रहा है, करेक्ट? Yes, ma'am. और यस इसके मैम। लिए 1 0 क्या हो गया तुम्हारा, एटम हो गया। समझ में आ गया अभी? Yes, ma'am. यस मैम। अभी नेक्स्ट जो है तुम्हारा 1 1 है। 1 1 के रो में चेक करो क्या आ रहा है। 0 0 0 1 1 0 1 1. तो मिनिमल एलिमेंट आ रहा है, और दूसरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, खुद आ रहा है क्या वो? हाँ, yes. 1 1 आ रहा है, लेकिन 0 1 और 1 0 भी आ रहा है ना। Yes, ma'am. 1 0 आ रहा है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या चाहिए, या तो मिनिमल एलिमेंट चाहिए या तो वो एलिमेंट खुद आना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कुछ आ गया तो वो एटम नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक। So only 1 0 and 0 1 are the atoms. Is it clear? यस मैम। सिमिलरली यहाँ पे D30 के लिए है, D30 के लिए तुमको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है? Okay, ma'am. अभी नेक्स्ट जो है A इक्वल्स टू पाई A ए बी एंड ये वाला भी जो है, ये भी शायद तुम कर सकते हो। ये दोनों एग्जांपल्स तुमको होमवर्क के लिए करना है और मुझे बताना है एटम्स कौन से है। तुम्हारे पास मीट टेबल है, D30 के लिए भी है, और नेक्स्ट वाला सेट A जो है उसके लिए भी तुम्हारे पास मीट टेबल है, दोनों के लिए। तुमको सिर्फ कंडीशंस चेक करना है। नेक्स्ट, बूलियन वेरिएबल, a variable that assumes only the values 0 and 1 is called as a boolean variable. Okay? अभी यहाँ पे जो है ना कुछ लॉज है, ये लॉज सिर्फ एक बार देख लो तुम। कुछ इसमें ये लॉज पूछते नहीं है ज्यादा, बट ये तुम्हारे बुक में है तो यहाँ पे मैंने नोट्स में दी हूँ, ये देख लो, ये इजी है, तुमको आ जाएगा। 0 join 0 0, 0 meet 0 0, ये सब इजी है। 1 meet 1 is 1, ये सब तुमको पता है, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, so quickly we will move on to the next is De Morgan's law. What is De Morgan's law now? X meet y bar equals to x bar join y bar, and x join y bar equals to x bar meet y bar. Okay, so this is De Morgan's law. Next you have absorption law. Absorption law में क्या है, x join in bracket x meet y equals to x. Okay, and x meet x join y is also equals to x. This is called as absorption law because y is getting absorbed. तो इसको क्या बोलते हैं, absorption law. Next is unique property, x join x bar is 1, and zero property, x meet x bar is 0. Okay, तो ये लॉज है, 11 लॉज है, ये पर सिर्फ पढ़ लो, ये पूछते तो नहीं है ये ज्यादा, सिर्फ एक बार इसको देख लो। Next is representation of Boolean functions. Now this is important. Min term, max term. यहाँ पे ये दो concept important है.
मिन टर्म किसको बोलते हैं देखो, और मिन टर्म ऑफ boolean variables suppose x1 x2 xn, it is the expression of the form y1 meet y2 meet yn where each yi is either xi or xi bar. ठीक है, मतलब मिन टर्म किसको बोलते हैं इतना ही याद रखना है. मिन टर्म क्या होता है, उसमें कंजंक्शन आता है. ठीक है, मिन टर्म मतलब क्या, कंजंक्शन ऑफ boolean variables. इज इट ओके? Yes, ma'am. उसके बाद नीचे देखो मैक्स टर्म है. मैक्स टर्म क्या रहेगा तुम्हारा, जॉइन ऑफ boolean variables. मिन टर्म में क्या आता है, मीट आता है, और मैक्स टर्म में क्या आता है, जॉइन आता है. ठीक है, अभी उसके बाद जो है डीएनएफ है. डीएनएफ इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, वी आल्सो कॉल इट एज डीएनएफ. अ boolean function represented by join of minterm is said to be DNF. okay, join of minterms. join of minterms रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, DNF. और CNF किसको बोलते हैं, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. मीट ऑफ मैक्स टर्म इज सेड टू बी CNF. अभी ये जो है, ये डेफिनेशन जो है, ये तुम बाद में एक एग्जांपल के बाद देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Here I have one example. X join y bar. कोई तो ये एग्जांपल लिख कर ले लो बुक में. X join y bar meet x meet y bar. Then I will explain that. Finished? लिखे? लिखे क्या? Yes, ma'am. Can you see? अभी बोलो मुझे, क्या है तुम्हारा, क्या कितने वेरिएबल है तुम्हारे पास, x है, करेक्ट? नेक्स्ट इज व्हाट, y. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद क्या चाहिए तुमको, x बार चाहिए क्या? x बार चाहिए? No, ma'am. Y bar. Y bar. और क्या है उसके बाद? X join Y bar. और क्या चाहिए? X meet Y bar. और लास्ट में X join Y bar meet X meet Y bar. मतलब 1, ये कॉलम 1 2 3 4 एंड 5. तो क्या चाहिए तुमको, 4 मीट 5 चाहिए ना? Yes, ma'am. ठीक है, अभी x के वैल्यूज बोलो मुझे. दो वेरिएबल्स है तो क्या आएंगे, 1 1 0 0, जैसा टीटी लिखते ना तुम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे 0 मतलब तुम्हारा f हो गया, और 1 मतलब क्या हो गया, t हो गया. ठीक है, सो 1 1 1 1 0 1 दिखाई दे रहा है सबको. y के लिए क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0. y पर क्या बन जाएगा, 0 1 0 0 1. 1 0 1. x जॉइन y पर क्या बनेगा, f f f रहता है, यानी कि 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, बाकी का सब 1 आएगा. तो देखो यहाँ पर ये वाले रो में 0 और यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 0 0 जॉइन 0 0 हो गया, बाकी का सब क्या बन गया, 1. करेक्ट? Yes, ma'am. अभी x मीट y बार, अगर दोनों 1 है तो 1 रहेगा, नहीं तो 0 आएगा. तो x मीट y बार में ये वाले रो में 1 मीट 1 है तो 1 आएगा, है ना? बाकी का सब 0 आएगा. करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी 4 मीट 5 यानी कि 1 1 1 आएगा, बाकी का सब 0 आएगा. ओके? Okay, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो क्या करना है तुमको, जहाँ पे 1 है ना, ये 1 डालना है.
ओके अभी हम क्या लिखेंगे DN डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इक्वल्स ठीक है ये 1 आया यहाँ पे ये 1 के रो में चेक करो x और y का वैल्यू क्या है 1 0 1 0 तो पहले हम x लिखेंगे और y लिखेंगे और क्यों तो ये DNF है तो मीट ऑपरेशन आए ठीक है अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 है लेकिन y का वैल्यू कितना है 0 है तो इसीलिए यहाँ पे क्या डालेंगे हम y बार समझ में आया Yes, ma'am. अभी उसके बाद जो है तुमको क्या देखना है CNF के लिए तो CNF के लिए 0 पे एरो कर दे कौन सा डार्क कलर है अलग दिखना चाहिए 0 पे एरो करना है तुमको किसके लिए फॉर CNF ठीक है तो CNF इक्वल्स अब CNF के लिए जो है ना तुम्हारे पास ब्रैकेट में टर्म्स आएंगे ठीक है अब कितने कितने जीरोस है 1 2 3 यानी कि 3 ब्रैकेट बनेंगे तुम्हारे ओके इज इट ओके और ये CNF है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसके लिए ये ब्रैकेट के जो बीच में है ना एंड आएगा क्या आएगा And और यहाँ पे अभी 2 ही वेरिएबल्स है तुम्हारे पास तो x और अंदर ज्वाइन आएगा x ज्वाइन y ठीक है तो अभी फर्स्ट 0 को चेक करो फर्स्ट 0 के रो में x का वैल्यू कितना है 1 यहाँ पे ये 1 है और ये भी 1 है तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर x बार ज्वाइन y बार समझा क्या आएगा x बार ज्वाइन y बार सिमिलरली यहाँ पे ये 0 के लिए ये 0 है और ये 1 है ठीक है तो x एज इट इज आएगा क्योंकि x का वैल्यू 0 है ज्वाइन विथ y तुम्हारा 1 है इसके लिए क्या लिखोगे तुम यहाँ पर y बार समझ में आया? और ये 0 के लिए दोनों भी 0 है तो क्या आएगा तुम्हारा x ज्वाइन y X, Y. समझा यानी कि DNF के लिए क्या देखना है तुमको 1 देखना है 1 के जहाँ पे 1 आ रहा है वो रो में चेक करना है अगर x और y का वैल्यू 1 आता है तो x और y ही लिखना है अगर 0 आता है तो बार डालना है ठीक है और CNF में उसका अपोजिट करना है ओके Okay, ma'am. नाउ हियर यू हैव वन मोर एग्जांपल यहाँ पे देखो DNF के लिए 3 1 है तुम्हारे पास है ना फर्स्ट है यहाँ पर है सेकंड थर्ड 3 1 है करेक्ट डायरेक्टली मैं तुमको DNF बता रही हूँ यस और नो Yes, ma'am. yes ma'am तो 1 के ऊपर एरो डालोगे तुम ठीक है कितने ब्रैकेट्स बनेंगे तुम्हारे कितने 1 है 3 1 है तो देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स बने DNF के लिए Yes, ma'am. yes तो ma'am 3 ब्रैकेट है और DNF है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है तो ब्रैकेट्स के बीच में क्या आएगा और आएगा डिसजंक्शन आएगा ठीक है तो तीनों ब्रैकेट के बीच में और की साइन है देखो ठीक है Yes. अभी और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर कंजंक्शन आएगा ठीक है तो अभी पहला वाला 1 देखो पहले वाले 1 में x y z का वैल्यू कितना है 1 1 1. तो वहां पे x y z ही आएगा Yes, ma'am. ब्रैकेट में क्या लिखोगे फर्स्ट ब्रैकेट में x मीट y मीट z समझा Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट वाला 1 देखो नेक्स्ट 1 के करस्पॉन्डिंग में x y z का वैल्यू कितना है 0 1 1. 0 1 1 0 1 1 यानी कि x का वैल्यू कितना है 0 है तो x आएगा क्या x बार आएगा X bar. x bar x बार आएगा मीट Y. मीट Z. वेरी गुड नेक्स्ट 1 के लिए करस्पॉन्डिंग x y z का वैल्यू 0 0 1. तो क्या आएगा 0 0 है तो बार आएगा X bar, Y bar, Z. तो x बार मीट y बार मीट z
सिमिलरली CNF भी चेक करो. CNF के लिए कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, कितने जीरोस है तुम्हारे पास? 5. 5. 5. तो 5 ब्रैकेट्स बने हैं और ब्रैकेट्स के बीच में क्या आएगा? कंजंक्शन, बिकॉज इट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? और आएगा. चेक करो सही है क्या. अभी यहाँ पे जीरो के लिए देखना है. अगर जीरो है तो वेरिएबल को एज इट इज लिखना है. जीरो नहीं है तो बाहर डालना है. समझा? चेक करो. 110 पहले. हाँ, चेक करो पूरा DNF CNF सही है क्या, चेक करो. करेक्ट है मैम. लास्ट वाले कॉलम में मैम और का थोड़ा वो लग रहा है. मैम फिनिश्ड? मैम लास्ट ब्रैकेट में एक्स मीट आया है. क्या लास्ट ब्रैकेट में क्या है? एक्स मीट वाई हाँ, और जेड. और है वो, और है, मीट नहीं है. वेरी गुड. और आना चाहिए एक्स और वाई और जेड. यस मैम वही प्रॉब्लम है और कुछ. यहाँ पे भी ये नेक्स्ट एग्जांपल्स है कुछ, ये तुम बाद में देख सकते हो खुद से. उसके बाद थियरम्स है. थियरम के स्टेटमेंट पढ़ो सिर्फ, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम में तो थियरम का प्रूफ तो नहीं आएगा. थियरम के स्टेटमेंट सिर्फ तुमको पढ़ना है. ठीक है? थियरम के स्टेटमेंट पढ़ो. इन केस कुछ डाउट है तो फिर मैं बताती हूँ तुमको. So with this we have finished with second chapter. Okay? Now third chapter we will begin in the next lecture, that is counting principles. और एक बात यहाँ पर, अगर most probably tomorrow I will take extra lecture. Is it okay? Yes, ma'am. So tomorrow may, Okay, in ma'am. the afternoon, after 3 o'clock only I will take, if I take, okay? Okay, ma'am. And if I take, I will message you all by tomorrow morning. And if I don't tell you all, then there will be no lecture, okay? If at all there is lecture, I will inform you. Okay, ma'am. मैम प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम थी. कौन सा मैथ्स होता? हाँ मैम, वो नहीं समझ रहा कौन सा करना है प्रैक्टिकल. 10 और 11 ही करना है क्या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल टेक करना भी तुमको मैक्सिमा का. तो अभी तुम सॉल्व कर सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल का, थियरी का. ठीक है? ओके मैम. अगर कुछ डाउट है तो मुझे फिर ग्रुप पे पूछो, फिर क्या डाउट है तो मैथ्स के ग्रुप पर. So we will stop over here. Tomorrow if I take extra lecture, we will begin with the next chapter. Okay? ओके मैम. Okay, you can leave now.